My dear students, Namaste. Today I'm going to discuss with you a story named Should Wizard Hit Mummy? I repeat again, Should Wizard Hit Mummy? It was written by John Updike. Firstly, I'm going to discuss with you the brief introduction to the story, and after that I'll discuss with you simplified version of the story. Please listen carefully. I'm going to discuss. Little children love to hear stories. Little children love to hear stories from their parents. Little children love to hear stories from their parents at bedtime. Little children love to hear stories from their parents at bedtime. Such stories are mostly fables and have no logic behind them. Such stories are mostly fables and have no logic behind them. Many a time, parents make up stories out of their own head. Many a time, parents make stories out of their own head. Little children take them as literally true. Little children take them as literally true. But as the child grows up, he becomes inquisitive. As the child grows up, he becomes inquisitive. He begins to ask many questions. He wants to know why and how certain things happen. He wants to know why and how certain things happen. He wants to know the reason behind things. Sometimes parents take this questioning of the child as an affront. Sometimes parents take this questioning of the child as an affront. They try to discourage it. They want the child to accept. They want the child to accept as true whatever is said to him. They want the child to accept as true whatever is said to him. Is such an attitude desirable? Is such an attitude desirable? The story Should Wizard Hit Mummy poses this question. The story Should Wizard Hit Mummy poses this question. A father tells his child a story out of his head. A father tells his child a story out of his head. The child interrupts him a number of times. She raises questions whenever she feels that the story is wrong. The father feels himself caught in an ugly middle position. The father feels himself caught
in an ugly middle position. He does not know. He does not know whether he should accept the child's version or stick to his own. He does not know whether he should accept the child's version or stick to his own. Thus, the story raises a moral issues and leaves it to the reader to resolve it. Thus, the story raises a moral issues and leaves it to the reader to resolve it. My dear students, this is the brief introduction of this story, and next audio and I will discuss with you the simplified version of the story. Now I am translating these passage in Hindi. छोटे छोटे बच्चे सोते समय अपने माता पिता से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। इस तरह की कहानियाँ प्राय मनगढ़ंत होती हैं तथा उनके पीछे कोई तर्क नहीं होता। अनेक बार माता पिता अपने ही दिमाग से कहानियाँ गढ़ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे उन्हें अक्षरशः सच मान लेते हैं, किंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह जिज्ञासु बन जाता है। वह अनेकों प्रश्न पूछने लगता है। वह चीज़ों के कारण जानना चाहता है। कई बार माता पिता बच्चे के प्रश्न पूछने को एक अनादर मान लेते हैं। वे इसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा हर उस बात को सच माने जो उससे कही जाए। क्या इस तरह का व्यवहार वांछनीय है? यह कहानी इसी प्रश्न को उठाती है। एक पिता अपनी बच्ची को अपने मन से ही बनाकर एक कहानी सुनाता है। बच्ची उसे अनेक बार टोक देती है। वह प्रश्न पूछने लगती है जब भी वह ऐसा महसूस करती है कि कहानी गलत है। पिता स्वयं को एक भद्दी सी मध्य की स्थिति में फंसा हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह बच्ची वाली बात को मान ले अथवा अपनी बात पर ही अटल रहे। इस प्रकार कहानी एक नैतिक प्रश्न उठाती है और इसका हल पाठक पर छोड़ देती है। तो स्टूडेंट, ये था शुड विज़र्ड हिट मम्मी का इंट्रोडक्शन। और जैक जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि जैक के एक फादर है और उनकी जो पुत्री है उनका नाम जो है। जैक की पत्नी का नाम क्लेयर है। ठीक है। जो होती है वो आप ऐसे कहेंगे कि हर शाम को जो है वो अपने फादर जैक से जो है कहानी सुना करती हैं। और उसके जो पिता हैं वो हर शाम को जो है जो को कहानी सुनाया करते हैं। ठीक है। और सैटरडे दोपहर को भी कहानी सुनाया। जो को जो है कहानी सुनने के बाद ही नींद आती है। जब वो कहानी सुन लेती है तो उसके बाद ही उसे नींद आती है। मैंने ये भी आपसे बताया कि ये जो कस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये कब शुरू होता है? जब जो 2 साल की थी। और अब क्या हो गया है? अब जो है इस कस्टम को कितने साल और हो गए हैं? 2 साल और हो गए हैं। ओके। दिस कस्टम began when she was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. You know that this custom began before 2 years ago, and now there is no stories, there is no more stories, in the head of the Jack. Okay?
Each new story was a slight variation of a basic tale. मैंने आपसे कहा था कि जो प्रत्येक कहानी होती है, वह जैक 2 साल से लगातार कहानियां सुना रहा है, ठीक है, अपनी बेटी जो को, और अब उसके पास कहानियां और नहीं है। अब वो अपने दिमाग को कैसे महसूस करता है? खाली महसूस करता है, ठीक है। लेकिन जो को तो कहानी सुनानी है ना, जो तो मानेगी नहीं, वो तो तभी सोएगी जब वो कहानी सुन लेगी। तो जैक क्या करता है कि उसकी एक बेसिक टेल होती है, यानी कि मौलिक कहानी। जो मौलिक कहानी होती है उसी में ही थोड़ा वेरिएशन करके, उसी में ही थोड़ा बदलाव करके नई कहानी को, मतलब नई कहानी जिसको हम कहेंगे मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानी का मतलब जिस कहानी को हम मन से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ईच न्यू स्टोरी वाज स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल और स्मॉल क्रीचर usually named Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem. जो हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें जो एक मौलिक कहानी है या जो बेसिक टेल है, वो इस तरह से है कि जो बेसिक टेल है जो जैक जो को सुनाता है, वो इस तरह की है कि जब कहानी शुरू होती है तो एक छोटे से जीव से कहानी शुरू होती है, एक लिटिल क्रिएचर से कहानी शुरू होती है, और उस क्रिएचर का नाम क्या होता है? रोजर। स्टार्टिंग में क्या होता है? रोजर। और उसके बाद क्या हो सकता है? रोजर फिश हो सकता है, रोजर स्क्वेरल हो सकती है, या फिर रोजर चिपमंक हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जो है जैक कहानी शुरू करता है, ठीक है ना। जब भी वो कहानी सुनाता है जो को, तो उसमें जो एक कैरेक्टर होता है, एक पात्र होता है ना, उसका नाम क्या होता है? रोजर होता ही होता है, रोजर होता ही होता है। उसके बाद फिर उसके पीछे फिश भी हो सकता है, या फिर स्क्वेरल हो सकता है, या फिर चिपमंक। चिपमंक जो होता है ना, वो भी एक प्रकार की क्या है? स्क्वेरल ही है, ठीक है। स्क्वेरल ही है क्या? चिपमंक, ठीक है ना। A small creature usually named Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. और उस छोटे से क्रीचर को कोई समस्या होती है, ठीक है ना, और जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ चला जाता है? एक वृद्ध बुद्धिमान उल्लू के पास चला जाता है। क्यों? To find out the solution of his problem, अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए वो कहां चला जाता है? एक ओल्ड वाइज आउल के पास चला जाता है, ओके। रोजर चिपमंक had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problems. फिर जो आउल होता है वो उस लिटिल क्रिएचर को किसके पास जाने के लिए कहता है? विजर्ड के पास। विजर्ड के पास जाने के लिए कहता है, ठीक है। और फिर विजर्ड क्या करता है? कुछ मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है, ठीक है ना। कुछ मंत्र करता है या कुछ जादू करता है, और उस जादू से जो है क्या हो जाता है? उस समस्या का हल हो जाता है। किसकी समस्या थी वो? किसकी थी? लिटिल क्रिएचर। मैं आपसे क्या डिस्क्राइब कर रहा हूं? क्या डिस्क्राइब कर रहा हूं? क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं आपको बता रहा हूं कि जो बेसिक टेल होती है, बेसिक टेल जो जैक किसको सुनाता है? जो को, ठीक है, वो किस प्रकार की है वही मैं आपको बता रहा हूं। Solve the problem demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had. और उसके बाद जो विजर्ड होता है, जब वो लिटिल क्रिएचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उसके बाद वो पेनीज की डिमांड करता है, पैसे की डिमांड करता है कि आप मुझे क्या दीजिए? पैसे दीजिए, ठीक है। और कितने पैसे की डिमांड करता है? कितने पेनीज की डिमांड करता है? जितने पेनीज उस लिटिल क्रिएचर के पास होते हैं उससे ज्यादा, ठीक है ना, ओके। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. लेकिन साथ साथ में विजर्ड ये भी कहता है कि जो पैसे आपके पास कम है, जो पेनीज आपके पास कम है, वो पेनीज कहाँ मिलेंगे? उसके लिए भी विजर्ड उसको डायरेक्टेड कर देता है, मतलब उसको रास्ता दिखा देता है कि आपको वहां जाना होगा, ठीक है।
जैसे आपको इस लेन में आगे जाना होगा और वहां पे आपको 3 बार घूमना होगा। वहां पे एक मैजिक वेल है और उस मैजिक वेल में आपको क्या मिलेंगे? पेनीज। कितने पेनी? तो इस तरह से जो है आगे देखिएगा। Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in the time to hear the train whistle that brought his daddy home from the Boston. उसके बाद क्या होता है? वो लिटिल क्रिएचर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो अपने अन्य क्रिएचर के साथ बहुत सारे गेम्स को खेलता है। और जब शाम होती है तो वो अपने मम्मी के पास पहुंचता है और ठीक उसी समय जो है एक रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। जो रेल उस लिटिल क्रीचर के पिता को जो है बोस्टन से कहाँ पे लेके आता है? घर लेके आता है। ठीक है। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। उसके बाद क्या होता है? जैक उनके जो सपर, जो शाम का खाना होता है, उसका वर्णन करता है कि वो तीनों लोग, कौन तीनों लोग? लिटिल क्रीचर के पिता, उनकी मम्मी और लिटिल क्रीचर, तीनों लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं और यहाँ पे कहानी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है। ये बेसिक टेल है जो जैक किसको सुनाता है? जो को सुनाता है। ठीक है ना। और इसका जो हीरो